میری ماں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا تھا اور مجھ سے کہہ رہی تھی بس اس بار میں انہیں معاف کر دوں، وہ آئندہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کریں گی۔ مگر اس بار مجھے ان پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں نے بنا دوپٹے کے ہی ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں بس اپنی گاڑی کو تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑا رہا تھا اور میں نے گاڑی کی بریک یتیم خانے کے سامنے جا کر لگائی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا اور گاڑی کا ڈور کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دوسری جانب دروازہ کھول کر اپنی والدہ کو گاڑی سے نیچے اتار کر ڈگی سے ان کا سامان اتارا اور انہیں یتیم خانے چھوڑایا تھا۔ اس وقت میرے اس عمل کو دیکھنے والے شاید مجھے بے حس نافرمان بیٹا سمجھتے ہوں گے۔ ہاں، میں بے حس ہوں، نافرمان بھی ہوں، مجھ جیسے بیٹے کو مر ہی جانا چاہیے۔ لیکن جو کچھ میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ کیا تھا وہ سن کر آپ کانپ جائیں گے۔ وہ ہاسپٹل میں اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے اس وقت اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی والدہ سے سچ پوچھ رہا تھا۔ یہ بات تو میری ماں بھی جانتی تھی، لیکن ان کی چپ انہیں مجرم ثابت کر رہی تھی۔ مرد ایک ایسی ہستی ہے کہ جب شادی کر لے تو اس کے لیے انصاف کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھے یا ماں کے حقوق کا۔ میں خالی سڑک پر اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ میری گزشتہ زندگی کے سارے لمحات گزرنے لگے۔ رضوانہ کو میری والدہ نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ وہ ان کی سکی بھتیجی تھی۔ میری والدہ نے بڑے چاؤ اور محبت سے دھوم دھام سے میری شادی رضوانہ سے کروائی تھی۔ شادی کی رات میری بیوی بہت چپ چپ سی تھی، حالانکہ میری یہ کزن ہمیشہ ہنستی ہنساتی رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل چپ تھی۔ میں شروع سے ہی کسی بھی کزن سے زیادہ بے تکلف نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اکیلا رہنے کی وجہ سے میرا مزاج تنہائی پسند تھا۔ میرا زیادہ تر وقت گھر پر ہی میری والدہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ مجھے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ بالکل بھی پسند نہ تھی اور لڑکیوں میں بھی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ماموں کے گھر بھی میں کم ہی جاتا تھا، لیکن جب کبھی میرا وہاں جانا ہوتا میں نے رضوانہ کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت کسی آزاد پرندے کی طرح چہکتی رہتی تھی۔ میرا ننیال ایک ہی گھر میں رہتا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، سب ماموں کے الگ الگ پورشن تھے، لیکن سب کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ میری والدہ پیسوں کے معاملے میں بھائیوں سے زیادہ ٹھیک ٹھاک تھی، اس لیے جب بھی میکے جاتی تو سبھی ان کے آگے پیچھے ہی رہتے تھے۔ میری والدہ بھی اپنے میکے میں جا کر اپنے ناز نخرے اٹھواتی تھی، لیکن کبھی میری پھپھو سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ بس ایک ہی پھپھو تھی میرے ددیال کے نام پر۔ دادی وفات پا چکی تھی اور بابا کا پھپھو کے علاوہ اور کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ جب بھی مہینوں بعد چند گھنٹوں کے لیے آتی تو میری والدہ کا مزاج ہی خراب رہتا۔ میری والدہ ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی۔ پھر تو پھپھو نے ہمارے گھر آنا اور بھی کم کر دیا تھا، لیکن والد کے انتقال کے بعد وہ کبھی نہیں آئیں۔ میری والدہ نے میری شادی پر بھی بس ایک کارڈ ہی ان کے گھر بھجوایا تھا، لیکن پھپھو کے گھر سے کوئی میری شادی پر نہیں آیا تھا اور میری والدہ کو پرواہ تک نہ تھی۔ رضوانہ سب کزنوں میں خوبصورت تھی، اس لیے میری والدہ کو میرے لیے پسند آ گئی تھی۔ پھر میری والدہ مالی حالات میں اچھی تھی، اس لیے رشتے سے انکار کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میری بیوی سجے سورے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی، جو کہ میری والدہ کی دلی پسند تھی۔ میں شادی سے پہلے محبت کا قائل نہ تھا، یا یوں کہیے کہ میں ایک پریکٹیکل سوچ کا مالک تھا۔ میرا رجحان کاروبار کی طرف زیادہ تھا۔ اپنے والد کی گارمنٹ فیکٹری کو میں نے بہت کم عرصے میں بہت کامیاب بنا دیا تھا، لیکن بہرحال شادی کے حوالے سے جو جذبات سب کے ہوتے ہیں میرے بھی تھے۔ رضوانہ مجھے کبھی بری بھی نہیں لگی تھی۔ پھر بیوی حسین ہو تو شوہر کے دل میں گھر بہت جلدی کر جاتی ہے۔ میں نے رضوانہ کو سونے کے کنگن پہنائے تھے۔ مجھے لگا وہ ان کنگن کو مسکرا کر دیکھے گی، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گی، لیکن وہ بالکل بے تاثر سی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میری تعریف پر بھی اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ سجی تھی، نہ ہی فطری حیا کا کوئی رنگ جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ آج کی رات کے ہر حسین جذبے سے عاری تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل سے ایک خیال سا گزرا جس نے مجھے بے چین سا کر دیا تھا۔ میں نے کہا رضوانہ تم خوش تو ہو؟
मेरी बात पर उसने एक नजर उठाकर मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखें मुझसे कुछ और कह रही थी। कुछ सानिये गुजरने के बाद उसने धीमे लहजे में कहा कि जी। ना जाने क्यों, लेकिन मैं उसके इस जवाब पर मुतमईन नहीं था। मेरे अगले सवाल पर वो जरूर घबरा सी गई थी। मैंने कहा, तुम किसी और को पसंद करती थी? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा था। मेरी सोच भी आम मर्दों जैसी ही थी कि मेरी बीवी की जिंदगी के साथ साथ दिल पर भी मेरा ही मकाम हो। वो नजरें चुराकर कहने लगी, अगर मुझे आप पसंद ना होते तो मैं इस वक्त आपके सामने ना बैठी होती। रिजवाना के जवाब ने मेरे बेचैन दिल को कुछ करार सा दिया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, फिर तुम्हारी खामोशी की क्या वजह है? कहने लगी, आप जानकर क्या करेंगे? मैंने कहा, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। तो मुझे देखकर कहने लगी कि इरफान, मुझे ये बताइए कि मेरी इस घर में हैसियत क्या होगी? उसका लहजा और अंदाज खासे संजीदा था। मैंने कहा कि ये कैसा सवाल है, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हैसियत भी वही होगी। बस अम्मी का बहुत ख्याल रखना, उनके किसी मामले में तुम कुछ मत कहना। जो वो तुम्हें कहे वो मान लिया करना। मैंने वही रस्मी से जुमले दोहराए थे जो ज्यादातर मर्द कहते हैं। लेकिन मेरी बात पर वो हंसने लगी। मुझे उसके हंसने पर हैरत थी। मैंने उसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा था जिस पर वो हंसने लगी थी। कहने लगी कि अभी तो आप कह रहे थे तुम्हारी मेरे घर में बीवी की अहमियत है, और दूसरे लम्हे आप मुझसे ये कह रही हैं कि मुझे आपकी वालदा का गुलाम बनकर रहना है, उनके सामने सर झुकाए रखना है। इस बात को सुनकर तो मैं कुछ गड़बड़ा सा गया था। मैंने कहा, अम्मी इतनी चाहत से लेकर आई हैं, तुम्हें गुलाम तो नहीं बनाएंगी? वो मेरी बात पर तंजिया मुस्कुराई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, रिजवाना कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर किचन में आया तो वो नाश्ता बना रही थी। मुझे ये देखकर हैरत हुई थी। मैंने कहा, तुम नाश्ता क्यों बना रही हो? अम्मी कहाँ हैं? वो कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे चंद दिन बाद भी घर संभालना ही था। फिर आप तो जानते हैं फुफ्फो के मिजाज को, वो कहाँ किसी को अहमियत देने की आदी हैं। उन्हें तो बस ये शौक है कि उनके नाज नखरे इस उम्र में उठाए जाएं। मुझे बहरहाल ये बात तो बुरी लगी कि मेरी एक दिन की दुल्हन किचन का काम भी शुरू कर दे। क्या हर्ज था कि अम्मी 2-4 दिन उसे नाश्ता ही बना देती, फिर तो सारी जिंदगी उसी ने ही मेरी वालदा की खिदमत करनी थी। वो चाय बना रही थी जब मैं किचन से निकलकर अम्मी के कमरे में आ गया। मेरी माँ फोन पर मुमानी से ये कह रही थी कि नाश्ता अभी तक क्यों नहीं भेजा। भाभी, जब आपको पता है कि हम लोग 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं। मेरी वालदा का वही सख्त लहजा था, वो रोब जमाने वाला अंदाज जो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ कौन से ढेरों मेहमान नाश्ते के लिए बैठे थे, हम 3 ही तो अफराद थे, और रिजवाना नाश्ता बना तो रही थी। फोन बंद हो चुका था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी वालदा एक नाश्ते के लिए ऐसा रवैया अख्तियार करेंगी। हमारे घर किसी चीज की कमी थी। बहरहाल मैंने अपनी वालदा से कुछ भी नहीं कहा। मेरी माँ मेरा माथा चूमने लगी, मुझे अगली जिंदगी की दुआएं देने लगी। रिजवाना का पूछने लगी कि क्या वो उठ गई। मैंने दिल में सोचा, खुद ही तो उसे नाश्ते का आर्डर दिया है और मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं। मैंने कहा, वो नाश्ता बना रही है, आप बाहर आ जाएं, मिलकर नाश्ता करते हैं। मेरी बात पर मेरी वालदा हैरान हुई थी। फिर कहने लगी, रहने देती, चंद दिन के बाद तो उसी ने सब कुछ संभालना है। उस वक्त तो मैं चुप रहा। जब हम बाहर आए तो रिजवाना नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। मेरी वालदा को सलाम किया, नाश्ता भी उनके सामने रखने लगी। मेरे दिल में उसकी अहमियत बढ़ने लगी थी। अभी हमने नाश्ता शुरू किया था कि मुमानी और मामू ढेरों नाश्ते का सामान लेकर पहुंच गए, और मुमानी मेरी वालदा से माजरत करने लगी कि वो तो सुबह ही नाश्ता बनाने लग गई थी, लेकिन बेकरी का सामान खरीदने में वक्त लग गया। मुझे अपनी वालदा की ये बात कुछ ठीक नहीं लगी थी। इतने ढेरों ढेर नाश्ते का उन्होंने करना क्या था? अगले रोज मैंने अपनी वालदा से कह दिया, रिजवाना को आए हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए और आपने उससे नाश्ता बनाने से एक बार भी मना नहीं किया। चंद दिन खाना आप ही बना लीजिएगा, उसका भी मान रह जाएगा। मेरी बात मेरी वालदा पर शायद नागवार सी गुजरी थी। उन्होंने मुझसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी सी फैल गई थी। रात को खाना मेरी वालदा ट्रे में रखकर मेरे कमरे में लाई थी। कहने लगी, मैंने सोचा रिजवाना को कमरे में ही खाना दे आऊं। ये देखकर मैं भी खुश हो गया था कि चलो मेरी वालदा ने मेरी बीवी को अहमियत तो दी। फिर अम्मी मुझसे कहने लगी, इरफान,
तुम बहू को आराम से खाना खाने दो, मेरे साथ बाहर आकर खाना खाओ। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। रिजवाना ने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी थी। मुझसे कहने लगी कि ये खाना आप पहले फुप्पो से कहें कि खाकर दिखाएं। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? एक तो मेरी वालदा तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हैं और तुम हो के वो कहने लगी इस खाने में कुछ मिलाया है, इसलिए पहले इसे फुप्पो खाकर दिखाएं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा कि वो मेरी वालदा पर इल्जाम लगा रही है। मेरी वालदा कहने लगी, इस बात का क्या मकसद है? आप ये मुझे खाकर दिखाएं, आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। मैंने कहा, अम्मी आप ये खाकर दिखा दें इसे, ऐसा भी इसमें क्या है? मेरी बात पर मेरी वालदा कुछ घबरा सी गई थी। उन्होंने एक निवाला तोड़ा और जैसे ही सालन लगाकर खाया तो सी सी करने लगी। एक पल में उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो फौरन से पानी पीने लगी, लेकिन उनकी मिर्चों से बुरी हालत थी कि वो कमरे से बाहर निकल गईं। रिजवाना मुझसे कहने लगी, देख लिया आपने, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था खाना मैं खुद बना लूंगी। देख लिया आपने, वो कैसा तेज मिर्चों वाला खाना मुझे खिलाना चाहती थी। मैं तो अम्मी की वजह से रिजवाना के सामने नजरें भी मिलाने के काबिल नहीं रहा था। उसके बाद से जो कुछ मेरी जिंदगी में होने लगा मेरे लिए अजियत का बाइस था। रात जब मैं घर पर थका मांदा आता, अम्मी सर बांधे बैठी होती, रिजवाना उनके लिए सूप बना रही होती। मेरी माँ मुझे देखकर न जाने क्यों रोने लगती। जब मैं वजह पूछता तो कुछ भी नहीं कहती। कमरे में जाता तो जैसे ही रात को सोने लगता मेरी वालदा चीखने चिल्लाने लगती। मैं फौरन से उनके पास चला जाता। वो कहती मेरे सर में दर्द है। मैं उनका सर दबाने लगता। आधी रात मेरी जूं ही गुजर जाती। चंद दिन से यही हो रहा था। मैं अम्मी को डॉक्टर के पास भी लेकर जा चुका था। उनके सर के एक्सरे भी करवा लिए थे। उनकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, लेकिन फिर भी जब भी मैं ये चाहता कि रिजवाना के साथ वक्त गुजारूं, मेरी वालदा की चीखों पुकार शुरू हो जाती। कभी सर दर्द का कहती तो कभी सीने में दर्द की शिकायत करती। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी माँ तो बिस्तर संभाल कर बैठ गई थी। कभी कभी तो मुझे ये लगता कि शायद वो चाहती ही नहीं है कि मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारूं, क्योंकि रिजवाना यही कहती थी कि फुप्पो पूरा दिन तो ठीक ठाक ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं फुप्पो बीमार हो जाती हैं। एक दिन जब मैं घर आया तो रिजवाना की तबीयत बहुत खराब थी। वो उल्टियां किए जा रही थी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। मेरी बीवी उम्मीद से हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का मशवरा दिया था और सख्ती से एहतियात बरतने के लिए कहा था, वरना हमल जाया होने का खतरा था। जितनी ये खबर मेरे लिए खुशी का बाइस थी, उतनी परेशान कुन भी थी, क्योंकि मेरी वालदा तो बिस्तर से नीचे तक नहीं उतरती थी। उस पर रिजवाना को भी डॉक्टर ने ऐसा ही मशवरा दे दिया था। मैं अगर मुलाजमा का इंतजाम भी कर लेता तो ऐसी कोई भरोसे वाली औरत नहीं थी कि जिस पर मैं भरोसा करता। मैंने दिन भर के लिए मुलाजमा रख दी थी, लेकिन जब भी मुलाजमा खाना बनाकर जाती उसमें नमक मिर्च तेज होने लगा था। रिजवाना मुझसे यही कहती कि फुफ्फो ने किया होगा ताकि मुलाजमा घर से निकल जाए और सारे काम मैं दोबारा से करने लगूं। मैंने कहा, ये बात तुम कैसे कह सकती हो सकता है मुलाजमा ये खाना ठीक से ना बनाती हो। लेकिन वो कहने लगी कि उन्हें जब से ये मालूम हुआ है कि मैं उम्मीद से हूँ, आपकी माँ ने खुशी का कोई इजहार ही नहीं किया। ये बात भी तो मैंने महसूस की थी कि मेरी वालदा ने इस खबर पर कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। मैंने रिजवाना से तो कुछ ना कहा, लेकिन मेरे दिल में मेरी वालदा के लिए इख्तलाफ सा आने लगा था। वो अब चुप चुप सी रहती थी। एक बार मैं घर आया तो रिजवाना किचन में खाना बना रही थी। मैं उसे किचन में देखकर उस पर चिल्लाने लगा कि वो क्यों एहतियात नहीं कर रही, आखिर उसे मसला क्या है। वो मुझे देखकर गुस्से से भड़क उठी। कहने लगी, जाकर वजह अपनी माँ से पूछ ले, जिसे न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है। मुलाजमा से झगड़ा करके उसे नौकरी से निकाल दिया है फुप्पो ने। जाहिर है मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। मरता है तो मर जाए मेरा बच्चा, आपकी माँ को तो सुकून मिल जाएगा। ये सुनकर तो मुझे अम्मी की इस हरकत पर अफसोस सा होने लगा था। मैं गुस्से से अपनी वालदा के कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं इस कदर डिस्टर्ब होकर रह गया था कि मैंने अपनी वालदा को झंझोड़ कर उठा दिया।
वो यूं उठी जैसे नींद में डर सी गई हूँ। मुझे देखकर लंबे लंबे सांस भरने लगी। कहने लगी, इरफान तुम्हें पता तो है कि मुझे रात भर सुकून से नींद नहीं आती। मैं दवाएं खाकर सोती हूँ। अब तुमने मुझे जगा दिया है। देखो मेरे दिल की हालत, मेरे दिल की धड़कन अब मुश्किल से ही एतदाल पर आएगी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहने लगी, लेकिन मेरे दिमाग पर तो कुछ और ही सवार था। मैंने कहा, मुलाजमा की छुट्टी आपने करवाई है? वो कहने लगी, हाँ मैंने ही करवाई है। ये सुनने की देर थी, मुझे गुस्से से आग लग गई थी। मैंने कहा कि आप चाहती क्या हैं? अम्मी, क्यों आप मेरा हंसता बसता घर नहीं देख सकती? रिजवाना आपकी सकी भतीजी है, आप ही उसे अपनी पसंद से लेकर आई हैं। वो दिन भर आपकी खिदमत करती है, लेकिन एक आप हैं कि आपको वो बर्दाश्त ही नहीं है। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है, लेकिन आपने मुलाजमा हटवा दी। आप क्या चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी बे औलाद रहूं और मेरी बीवी आपकी खिदमत में लगी रहे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अल्लाह ना करे कि तुम बे औलाद रहो, लेकिन वो मुलाजमा ठीक नहीं थी। मेरी वालदा की बात अभी मुंह में ही थी कि मैं भड़क उठा। मैंने कहा, आप आज के बाद मेरे घर के मामले में नहीं बोलेंगी। मैं किसे मुलाजमत पर रखता हूँ, किसे नहीं। आप किसी किस्म का कोई एतराज नहीं करेंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी वालदा ने अब घर की मुलाजमीन से भी बातचीत खत्म कर दी थी। मैंने दूसरी मुलाजमा भी रख दी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। रिजवाना को 9वां महीना शुरू हो चुका था। अभी डिलीवरी में 15 दिन बाकी थे कि मुझे एक दिन ऑफिस पर मुलाजमा की कॉल आई कि जब वो सुबह काम पर आई थी तो रिजवाना सीढ़ियों से गिरी हुई थी। अब वो दर्द से तड़प रही है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं फौरन से भागम भाग घर पहुंचा तो रिजवाना बेहोश हो चुकी थी। मैं उसे उठा मुलाजमा को साथ चलने का कहकर गाड़ी में रिजवाना को डालकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरी माँ उस वक्त सैन में परेशान सी खड़ी थी। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा। रिजवाना को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। मुझसे मुलाजमा कहने लगी कि जब वो घर पहुंची थी तो रिजवाना सीढ़ियों से गिरी हुई थी, दर्द से तड़प रही थी और मेरी वालदा उसके पास खड़ी उसकी बेबसी का तमाशा देख रही थी। ये सुनना था कि मेरा गुस्सा बेकाबू सा होने लगा। उस पर डॉक्टर ने मुझे ये खबर सुना दी कि या तो बच्चा बचेगा या माँ। इस खबर ने तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी। मैं घर गया और अपनी वालदा से कहा, क्या उन्होंने रिजवाना को सीढ़ियों से धक्का दिया था? मेरी बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मुबारक हो आपको, आपका मकसद पूरा हो गया। मेरा बच्चा मर जाएगा, फिर आप उसकी मैयत पर खड़ी होकर जश्न मनाना। मैं गुस्से से बोला था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उनकी खामोशी मुझे मजीद पागल करने लगी थी। मैंने उनके कपड़े बैग में रखे और उन्हें हाथ से पकड़कर घर से बाहर ले गया। मुझे अपने घर में ऐसी माँ की कोई जरूरत ना थी जो मेरे ही बीवी बच्चों की दुश्मन बन गई थी। उनकी चुप इस बात का एतराफ थी कि उन्होंने ही मेरी बीवी को धक्का दिया था। मैं उन्हें यतीम खाने छोड़ आया। उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो आपको, आपकी बीवी और बच्चा दोनों ठीक हैं। आपको अल्लाह ने बेटे से नवाजा है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। जब मैं कमरे में रिजवाना से मिलने गया तो वो रो रही थी। कहने लगी कि पुप्पो कहाँ हैं? मैंने कहा, जहाँ उन्हें होना चाहिए था। मैं उन्हें दारुल अमान छोड़ाया हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने ही तुम्हें धक्का दिया होगा। वो ही मेरे बच्चे की दुश्मन थी। मेरी बात सुनकर रिजवाना रोने लगी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो इरफान, मैंने आपसे झूठ बोला था और अब तक झूठ बोलती आई थी। फुफ्फो मुझे कुछ नहीं कहती थी, बस मेरा ही रवैया उनके साथ ठीक नहीं था, क्योंकि वो मेके आकर मेरी माँ पर रोब जमाती थी। मेरी माँ मजबूरन उन्हें पूछती, उनकी आओ भगत करती थी, इसलिए उनकी बुराइयां भी करती थी। मेरे दिल में भी फुफ्फो के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। फिर जब मैं शादी होकर यहाँ आई तो मेरे अंदर बदले की आग सी भड़क उठी थी कि जो कुछ वो मेरी माँ के साथ करती रही, मैं भी इस बात का बदला लूंगी। वो खाने में मिर्च मसाला नहीं तेज करती थी, बल्कि मैं करती थी। वो मेरे रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर बीमार रहने लगी थी। मुझे इस बात की सजा मिली है। मुझे कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं थी। मैंने डॉक्टर से झूठ बोला कि मेरी सास बहुत जालिम है, इसलिए वो आपके सामने मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दे दे। इसलिए आज भी मैं छत पर काम से गई थी कि वापसी पर मेरा पैर स्लिप हो गया। उस वक्त घर पर फुफ्फो के अलावा कोई न था। वो बीमारी के बावजूद मुझे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं दर्द से तड़प रही थी, इसलिए वो मुझे संभाल नहीं पाई, लेकिन मुझे दुआएं देती रही
کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر تو مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بنا سچ جانے ہی کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں بھاگم بھاگ دارالامان پہنچا تھا۔ میری والدہ اب وہاں کمرے میں چپ بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر ان کے پیروں میں گر کر رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، لیکن وہ اب بھی چپ تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ واپس چلے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی دنیا مکافات عمل ہے، جو کل میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا اب میری بھتیجی نے وہی میرے ساتھ دہرا دیا۔ مجھے رضوانہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے تو یہ غم ستائے جا رہا ہے کہ میں کیسے اپنے کیے ہوئے کی معافی اپنی ساس سے مانگوں، جو مجھے معاف کیے بنا ہی مر چکی ہیں۔ یہ کہہ کر میری والدہ رونے لگی۔ دنیا واقعی مکافات عمل ہے، جو وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اللہ سب پر رحم کرے۔